گئی۔ اب ہمیں ذرا بات کرنی ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ گو کہ جو بڑی ہماری نظر ہے جی افغانستان کی صورتحال پہ، کیونکہ اس وقت جو افغانستان میں ہوتا ہے اس کے ریپرکشنز پاکستان کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ افغانستان نے اگر 40 سال جو ہے وہ جنگ دیکھی ہے تو اس 40 سال کی جنگ کا خمیازہ پاکستان نے بھی بھگتا ہے۔ وہاں سے جو ریفیوجیز آئے ہیں پاکستان ان کو ہوسٹ کیا ہے۔ اب کل تھی 31 اگست اور کل تھا آخری دن۔ امریکی فوج، نہ صرف امریکی فوج بلکہ جو باقی اتحادی ہیں ان کے بھی افواج کے انخلا کا، لیکن یہ تمام جو انخلا کا پروسیس تھا یہ ایک دن پہلے ہی مکمل کر لیا گیا، اور یہ امریکہ کی طویل ترین جنگ تھی جو کہ افغان میں قائم رہی تقریباً 20 سال، اور فائنلی پرسوں رات اس کا خاتمہ بھی ہو گیا، ہم نے دیکھا۔ بالکل، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ امریکی فوج نے جو خطرناک مشن تھا اس کو صحیح طریقے سے پورا کیا، اور اندازہ نہیں تھا کہ اشرف غنی افغانستان سے فرار ہو جائیں گے۔ یہ موقف ہے جو بائیڈن کا۔ تو جو بائیڈن نے مزید کیا کہا آپ کو ذرا دکھاتے ہیں۔ Ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and the ability to do it, and we did it today. I take responsibility for the decision. Now some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? I respectfully disagree. Taliban has made public commitments, broadcast on television and radio across Afghanistan, on safe passage for anyone wanting to leave, including those who worked alongside Americans. We don't take them by their word alone, but by their actions. And we have leverage to make sure those commitments are met. Let me be clear. Leaving August the 31st is not due to an arbitrary deadline. It was designed to save American lives. صدر جو بائیڈن نے جو کہا وہ آپ نے سنا، لیکن آج سے 20 سال پہلے جب ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے، اور نہ صرف امریکہ نے بلکہ اپنے اتحادیوں نے جب اپنی افواج افغانستان بھیجی تھیں تو اس وقت صدر جارج ڈبلیو بش اور ساتھ میں جو پرائم منسٹر تھے یو کے انہوں نے بھی ٹونی بلیئر انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی پسپائی ہو رہی طالبان کو، اور اب ہم ان کا جو ایک دم سے سن رہے ہیں بیان سن رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم ان کے ایکشن پہ جائیں گے، ہم جو وہ کمٹمنٹ کہہ رہے ہیں اس پہ نہیں جا رہے۔ بات تو سنیں، عراق پر ان لوگوں نے حملہ کیا، WMD ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، تباہی کرنے جا رہے ہیں۔ لیبیا پہ حملہ کیا، تباہی کرنے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد افغانستان پہ حملہ کیا، ایران پر کر نہیں سکے کیونکہ ایران جو ہے وہ اپنے ظاہر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جغرافیائی لحاظ سے بھی اور خاص طور پر اس نے اسلحے کی پیداوار میں بھی خود کو ایسا خود کفیل کر رکھا ہے کہ اس کا دفاع خاصا مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ مسئلہ ایک یہ بھی تھا کہ ان کے پاس کوئی ایگزسٹنگ ایئر فورس نہیں تھی، لینڈ لاک کنٹری ہے، تو اس کے اندر جناب وہاں پر بحریہ نہ ہونے کے برابر، تو ان کے اندر اوپر سے ان کے اوپر بمباری کر کے ان کا انفراسٹرکچر جو کہ ویسے ہی نان ایگزسٹنگ تھا اس کو تباہ کر دیا۔ اب 20 سال وہاں رہنے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہے، سب کے بیانات اب تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن امریکہ اپنی جس بھی مقام پر جہاں پر بھی اس کو شکست ہوئی ہے ہمیشہ اس کو تمام تر ملٹری مائٹ دنیا کی سپر پاور ہے، اشفاق جس طریقے سے آپ اپنی پوری گیم ختم کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گیم کتنے اچھے طریقے سے کھیلی۔ جس طریقے سے راتوں رات امریکی فوج وہاں سے غائب ہوئی ہے اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے جانا شروع کیا، اس سے پتہ چلا تھا کہ ان کی پلاننگ کیا تھی، وہ کتنی مزید یہاں پہ ڈسٹرکشن کر گئے افغانستان۔ جی بتائیے۔ آپ لوڈو کھیلتی ہیں؟ بالکل۔ اس کے اندر لوڈو کھیلنے کے اندر ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ کوئی ایک فریق ہار رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سارا بالکل پوری جو گیم ہے نا وہ ساری خراب کر دیتا ہے۔ اچھا، جانے سے پہلے امریکی فوج نے کابل ایئرپورٹ کو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو تباہ کر دیا، جو وہاں پہ میزائل سسٹم موجود تھا اس کو ناکارہ بنا دیا گیا، ساتھ ہی وہاں پہ جو موجود اسلحے کی بہت بڑی کھیپ تھی اور جو طیارے وہاں پر تھے ان کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور طالبان کے خصوصی دستے جو بدری 313 نے ایئرپورٹ کا جب کنٹرول سنبھالا، جہاں انہوں نے فلک شگاف نعرے بھی لگائے وہ آپ نے سنے بھی، اور ساتھ ہی سجدہ شکر بھی ادا کیا، تو طالبان ترجمان ذبیحہ مجاہد کے ساتھ بدری فورس نے فوٹو سیشن بھی کیا۔ کل جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا وہ مناظر آپ کو یاد ہوں گے، ہم نے باخبر سویرا میں آپ کو دکھائی بھی تھی۔ اچھا، یہاں پہ روسی نیوز ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ طالبان جمعے کو نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کریں گے،
क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही है और अगर हुकूमत साजी हो जाती है तो ऑब्वियसली उनके जाहिर है कि एक 100 दिन का एक एजेंडा होता है। हम यहाँ के एजेंडे की बात नहीं कर रहे, लेकिन अफगानिस्तान का भी एक एजेंडा होगा। जाहिर है हुकूमत साजी का अमल वहाँ पर मुकम्मल होगा तो उसके बाद वो सोचेंगे कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को किस तरह से रन करना है, जो लोगों में खौफ और पैनिक है उसको किस तरह से ख़त्म करना है, सिक्योरिटी किस तरह से मेंटेन करनी है, मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है, सिफारती ताल्लुकात कैसे रखने। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है अफगानिस्तान के लिए और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी अफगानिस्तान से ताल्लुकात के बारे में बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एयरलाइन है जो मज़ार शरीफ में इमदाद लेके उतरी है। अफगानिस्तान के अवाम के दुखों में कमी लाने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, जो 40 साला एक दुखों की एक दास्तान है वो ख़त्म होगी। मुस्तहकम अफगानिस्तान के साथ अपने रवाबत और मजबूत कर पाएंगे। नेटो और उससे जो मुतलका जो लोग हैं 10,302 लोग आए थे, 9,032 उनमें चले गए, 1,229 रिमेनिंग। दूसरी जानिब हमने देखा कि जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर वो पाकिस्तान के दौरे पे थे। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अशरफ गनी हुकूमत सब अच्छा है की तस्वीर पेश कर रही थी, हकीकत में वो झूठ बोल रहे थे। यही वजह है जो हालात वहाँ पे थे वो नहीं समझ सके। और इस वक्त काबुल की जो करंट सिचुएशन क्या है जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा कि अमरीकी अफवाज जो इंतहादी थे उनके अफवाज का इंखला तो हो गया है, एक दिन भी गुजर गया और अब ये कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रॉबेबली जुमे को तालिबान वहाँ पर हुकूमत साजी करेंगे। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं अभी वहाँ पर? जिस तरह गुज़श्ता रात हमने देखा कि अमरीकी जो फौजी है वो रात की तारीकी में जो है वो काबुल से जो है उनका इंखला मुकम्मल हो गया। सुपर पावर दुनिया भर के लाओ लश्कर के साथ अफगानिस्तान पर हमलावर हुई थी। गुमान यही जाहिर किया जा रहा था कि ये मुल्क जो है वो एक प्लेट में रख कर उनको पेश कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इन 20 सालों में लाखों गयूर आवाम ने जो है अपनी जानें निछावर किए। इस पर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ हमने एक न्यूज़ चलाई, ब्रीफिंग न्यूज़ थी हमारी कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत के लिए अमीर उल-मोमिनीन जो सरबराह है तालिबान के अमीर उल-मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा के ज़ेर सदारत इनके सुप्रीम काउंसिल का एक अहम इजलास कंदहार में हुआ है। इस पर हमने ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो मरकज़ी तर्जुमान है इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के, उनसे बातचीत की तो उन्होंने इसको कंफर्म करते हुए कहा कि 3 रोज़ा जो इजलास था वो कंधार के शहर में हुआ, जिसमें हफ्ते के दिन से शुरू हुआ और पीर के दिन तक ये इख्तिताम पजीर हुआ। इस इजलास में मुल्क के मौजूदा सियासी, सिक्योरिटी और समाजी मसाइल पर तफसीली से तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में सिक्योरिटी सोशल इंतजामी हुक्म, शफाफियत, खजाने के मसाइल जो है स्पेशली इन पर भी बातचीत की गई। यहाँ पे मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने तालिबान रहनुमाओं को स्पेशली एक पैगाम दिया कि वो अफगान आवाम के साथ अच्छे बर्ताव। अच्छा अख्तर गुलफाम, ऑब्वियसली जाहिर है कि आप तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो हुकूमत साजी का मरहला है उसमें क्या चीज़ें हैं जो कि अभी डिस्कस हो रही हैं या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं कि वक्त थोड़ा ज़्यादा लग रहा है? देखिए जी, इतने कल की जो मीटिंग का हमें जो खदोखाल मिले हैं उससे ये बात जाहिर हो गई है कि आइंदा जो जुमा आने वाला है 2 दिन बाद, वो या इस जुमे तक जो है वो अफगान हुकूमत का जो है वो बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक तमाम चीज़ें कल की मीटिंग में जो है वो डिसाइड कर ली गई है और यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जुमे के दिन जो है इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के नए हुकूमत का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। सही। अच्छा अख्तर, ये बताइएगा, आपसे जब कुछ दिनों पहले हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था यहाँ पर अशिया खुर्नोश की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, 25% यहाँ पे महंगाई बढ़ गई है, बैंक्स यहाँ पे नहीं खुल पाए। तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से? देखिए जी, जहाँ तक बैंक न खुलने की वजूहत है तो तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने फिर उन खवातीन जो बैंक में काम करती थी उनके लिए बाकायदा एक अलामिया जारी किया कि वो अपने गाँवों पे इनको मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी और इनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उसके बाद जो है वो अफगान जो नेशनल बैंक है, बैंक अजीज़ी, वो बाकायदा खुल गए हैं आवाम के लिए, जिनके पैसे ख़त्म हो गए थे उनके पास, तो आवाम के इन 3 दिनों के दौरान काफ़ी जो है वो बैंकों के ऊपर रश रहा है। बैंक अफगानिस्तान भर में जो है वो खुल गए थे। इससे पहले 2 दिन पहले जो है वो ATM भी खुल गए थे, तो ज़्यादातर आवाम ने जो पैसे थे वो ATM के जरिए भी निकाले, लेकिन अफगानिस्तान में अब बैंक बाकायदा तौर पर खुल गए हैं। और जहाँ तक
बात है अशिया खुर्दनोश की, तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए तालिबान ने जो है वो ज़ली सतह पर न सिर्फ अपने गवर्नर को और जो ज़ली इनके हैं डिप्टी कमिश्नर उलसवाल जिसे कहते हैं, उनको भी अहकाम जारी किए कि वो बाज़ारों में जाए, मार्केटों में जाए और आवाम से अशिया खुर्दनोश कीमतें पूछे, दुकानदारों को उनके में इस्तेकाम लाने के लिए बातचीत करे। तो उससे भी काफ़ी असरात मुरतब हुए हैं और महंगाई में थोड़ी हद तक जो है वो कमी भी आई है। अच्छा, अब ये ज़रा बताइएगा कि जो फौजी सूरत हाल है, एक तो हमने जो मनाजिर देखे काबुल में कि हवाई अड्डा छोड़ने से पहले अमरीकियों ने वहाँ का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेके तमाम जो सोफिस्टिकेटेड जो वहाँ पर वेपनरी थी उसको तबाह करने की कोशिश की, तैयारों को तबाह करने की कोशिश की, तो उस पर तालिबान का क्या मौक़िफ़ है? और दूसरा, अफ़गानिस्तान की जो फ़ज़ाइया थी उसको रन करने के लिए बड़े एक आपको टेक्निकली आपको काफ़ी उसके अंदर बड़ा कॉम्प्लेक्स सूरत हाल होती है, तो उसके लिए क्या तालिबान तैयार हैं? उनके पास तमाम पायलट्स वगैरह या तमाम जो उनके पास लोग हैं जो तकनीकी महारत रखते हैं वो मौजूद हैं? देखिए जी, जहाँ तक काबुल एयरपोर्ट की बात है तो अमेरिकन ने जाते जाते जो है वो एक तबाहाल जो एयरपोर्ट है वो तालिबान के हवाले किया। बात की जाए तो जितने भी तैयारा, हेलीकॉप्टर, जंगी सामान था, जितने भी इक्विपमेंट थी जंगी, वो तमाम जो है वो डिस्ट्रॉय करके चले गए। हम ये कह सकते हैं कि एक तबाहाल जो एयरपोर्ट है और सामान है वो उनके हवाले कर दिया। हेलीकॉप्टर, जहाज, जितने भी जंगी सामान थे उनको तमाम को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही अमेरिकन फोर्सेज यहाँ से निकले हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कल इंखला के बाद कल दोपहर 10 बजे के करीब जो है वो एयरपोर्ट का दौरा किया। उन्होंने बदरी 313 के साथ जो है वो एक मुलाकात भी की है और वहाँ पे नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे भी लगे हैं। एक मुख्तसर सा खिताब भी उन्होंने बदरी 313 के सामने की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आज के बाद जो है वो इस एयरपोर्ट के मौसुलीन है वो यहाँ पे आवाम के लिए सहूलियात फराहम करे और अपने अफगान आवाम जो इनके 40 साल में कश्त खून में मुब्तला थे, जंगी में मुब्तला थे, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएगी। बात की जाए तो इसको रन करने के लिए अब चूंकि गवर्नमेंट बनने जा रही है, गवर्नमेंट बनने के बाद जो है वजारतें जो इनके दिफा और दीगर जो शोबे हैं जब वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा रही है कि हमसाय ममालिक से वो इस एयरपोर्ट को दोबारा मरम्मत के लिए वो राब्ते करेंगे। चलें जी, आई होप कि बहुत शुक्रिया। अख्तर गुलफाम काबुल से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे। अच्छा, एक और चीज़ है मदिया कि जो लोग वहाँ से ऑब्वियसली आ रहे हैं जो पाकिस्तान के ज़रिए दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, तो आजकल इस्लामाबाद में बड़ी इस हवाले से गहमा गहमी है। बिल्कुल, तमाम जो हमारे होटल्स हैं, तमाम जो गेस्ट हाउसेस हैं वो सारे के सारे बुकड हैं और वहाँ पर वो लोग क़याम पजीर हैं। और इसके साथ साथ जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि हमें विल हैव टू बी वॉचफुल कि उसके अंदर जो दूसरे एलिमेंट्स हैं कहीं उससे फ़ायदा उठा के हमें नुकसान पहुंचाने की मतलब हमने ऑलरेडी बड़ा सफ़र किया हुआ है, तो आंखें बंद करके तो हमें भी नहीं रहना, हमें भी आंखें खोल के रहनी और हमें देखना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है।